Okay. Well, guys, may I have your attention, please, everybody? Okay. Shall we begin? Sure, sir. Yeah. Yes, sir. So, guys, let me tell you. Today, I'm just going to work on little bit basics because of Rajni and Richa. Okay, R Square. Okay, Rajni and Richa. So So let me. today you will teach about past tense, na? Today, I will just talk about everything, everything. Little. So I Mostly. have a confusion between where we can use past perfect. I know about the rule and everything. Situational past perfect. Okay, I believe I will be able to help you out. So let's get started. Let's get started without any further ado. So here we go. Rest of the people Okay. can turn off their audios. Sir, further, Tell me what you said, sir? Further? further ado, Ado. ado, Ado. ado. Further ado. A-D-O. Ado. What is Yeah, the meaning of adult, sir? means Ado without means, being sir? late. Without being late. Without any further ado means without being late. Let's get started. So you have to work on. Especially Richa has the problem like whenever she speaks about past, she always uses, not always, most of the time she uses present. Okay. So first let's talk about past. I will give you some structures. First let me write down the structures. This is your first structure. This is your second structure. Okay. And this is your third structure. And this is your next number fourth. Okay, now this is okay, and then subject plus asked. So guys, these are the structures. Okay, now let me tell you, whenever you tell a story, okay, that time you have to talk about subject, v2 and object. When do you have to talk about this? Whenever you want to say that any action took place, any action took place in past time, and it has to be one time action. One time action means something happened. Suppose you went somewhere, you slapped someone, so means action was done by you, action just got completed. Then you have to use verb second form. You are not supposed to use any was or were. If you have to say about like yesterday I got up in the morning, it means you are talking about an action which took place. This action took place. Took place means happened. Something happened. It means you just got up. Action was done by you. You got up. So you have to use here second form. You can never say like yesterday I was got up. You can't say this. Or you can't say that yesterday I get up. You can't use this. So you have to use past tense, past indefinite tense, action second form, verb second form. In Hindi, if I say, because most of you must understand Hindi पहचान and all. Even in Hindi, you always say like मैं सुबह उठा, मैं वहाँ गया, या मैं किचन में गई, मैंने उसको देखा. Means whatever you did,
has to be spoken in second form. This is what you have to understand. So if I say, Rajni, that कल मेरी बेटी मेरे पास आई, how will you speak in English, Rajni? How will you say? Yesterday my daughter came to me. Okay, fine. मैं किचन में गई, how will you say? I went to the kitchen. I went to the kitchen. Yeah, I went into the kitchen. Okay. मैंने कल अपने दोस्त को देखा. I saw my friend yesterday. I saw my friend yesterday. Okay. मेरी पड़ोसन मेरे घर आई. My neighbor came to my home. ओके फाइन. अब मैं एक छोटा सा पैराग्राफ हिंदी में बोलूंगा, आपको बस ट्रांसलेट करना है उसको. ओके. और उसमें Okay, sir. ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपके मुंह से की भी निकल सकता है, बट आप कोशिश करना है की ना निकले. ठीक है, तो देखते हैं. एंड दिस वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड. ओके. सो कल सुबह ओके कल सुबह में 6 बजे उठी. कम ऑन. कल सुबह में 6 बजे उठी. हाउ विल यू से? Yesterday I was got up in 6 o'clock. गलत. At 6 o'clock. गलत. Yesterday I got up at 6 o'clock. हाँ जी, पहले आपने वॉज लगा दिया था, आप देख लीजिएगा, आपने वॉज लगा दिया, तो आपको गॉट अप कहना है. येस्टरडे आई गॉट अप एट 6 o'clock. उसके बाद मैं फ्रेश हुई. After that I got fresh up. ठीक है. मैं पार्क गई. I went to the park. ओके. मैंने वहां पर एक्सरसाइज किया. I did exercise over there. फिर मैं चाय की दुकान पर गई. Then I went to the tea stall. मैंने चाय वाले से कहा. I said to the tea maker, एक कप चाय बनाइए भैया. okay, please made me a एक कप चाय बनाइए. Okay, please made me a tea. मेक होगा ना फर्स्ट. 1 cup of tea. हाँ, मेक अ कप ऑफ टी फॉर Yes, मी. sir. चाय वाले भैया चाय बनाने लगे. Then chai maker started making a tea. अ नहीं आता है. मेकिंग टी. मेकिंग Okay. टी. Making tea. मैंने चाय पी. I drank the tea. सेकेंड फॉर्म, आई ड्रैंक टी. फिर मैं घर वापस आ गई. Then I came to back my home. Came back to my home. I came back To my home. To Came my home. back to my home. to my home. ठीक. रिचा पे आता हूँ, फिर आऊंगा आपके पास. रिचा, कल मैं पार्क गई. कल मैं पार्क गई. Yesterday, I went park. इसमें टू लगाना पड़ेगा. आई वेंट टू पार्क. आई वेंट टू पार्क. ओके. I went to park. मैं पार्क में टहलने लगी. टहलने लगी. कैसे बोलेंगे? I started walking in the park. इन द पार्क. ओके. अचानक मैंने अपने दोस्त को देखा. बोलिए. सडनली. रिचा, आर यू देयर? Suddenly, I saw my friend. ओके. Yes, ओके. मैं अपने दोस्त के पास गई. मैं अपने दोस्त के पास गई. I go there. नहीं, गलत. सेकंड फॉर्म होना चाहिए. आई वेंट टू माई फ्रेंड. आई वेंट टू माई फ्रेंड. दोस्त के पास गई. मैंने अपने दोस्त से पूछा. Okay. मैंने अपने दोस्त से पूछा. I asked my फ्रेंड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? friend, कम अगेन आपकी what are आवाज. you doing here? ओके. उसने कहा. What are you doing here? ठीक है. उसने कहा मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं. He said to me, I am doing exercise. ओके. उसके बाद हम दोनों जूस की दुकान पर गए.
After we went a juice shop, मैंने जूस वाले से कहा। I said to a juice maker, भैया 2 गिलास जूस बनाना। can you make 2 glass of juice? 2 ग्लासेस ऑफ जूस। उसने बोला 30 वाला लोगे कि 20 वाला? हम्म He said to me, uh, what kind of juice, 30 rupees or 20 rupees? मैंने बोला जी 50 वाला 2 बना दो। I said, I prefer वॉइस। 50 rupees glass. हम दोनों ने जूस पिया, फिर मेरा दोस्त चला गया और मैं अपने घर आ गई। काफी। Can you repeat it? हम दोनों ने जूस पी लिया, फिर मेरा दोस्त चला गया हाँ। और मैं अपने घर वापस आ गई। We both drank juice and I came back to my home. एंड माई फ्रेंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, ये आपका पास्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर फिर से देख लीजिए। Yes, and my friend went. Okay, okay. यहाँ पर देख लीजिए। रजनी आप हैं कि चली गई? Yes, sir, I'm here. ओके। Sir, I have a one question regarding this conversation. या सर मैंने चाय वाले को बोला, ये पास्ट में बोला आपने, इसमें इसको आपने प्रेजेंट में बोला, मतलब बोला इसमें है तो लगा नहीं, था तो लगा नहीं। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज? मैंने चाय वाले से बोला 1 कप चाय बना दो, तो इसको हम पास्ट में बोलेंगे कि प्रेजेंट में बोलेंगे सर? ओके, तो क्वेश्चन जो आपका आ रहा है कि मैंने चाय वाले से बोला, आप इसमें ढूंढ रहे हो कि है या था है और था से कोई लेना देना नहीं है। आपने पास्ट के अंदर आप कहानी सुना रहे हो पास्ट के बारे में, तो पास्ट में अगर आपने बोला, कहा, छुआ, पकड़ा, खींचा, मारा, सब सेकंड फॉर्म है, सब सेकंड। बट सर इसमें आपने फर्स्ट फॉर्म यूज की थी। नहीं, वो सेड बोला होगा, आपको से सुनाई दिया होगा, मैंने सेड ही बोला होगा। सर और एक क्वेश्चन में आपने बोला मैम ने, रजनी मैम ने, कि आई स्टार्ट स्क्रॉलिंग, मतलब कि टहलने को जो भी बोलते हैं, आई स्टार्ट स्क्रॉलिंग ओवर देयर। सर आई स्टार्ट स्क्रॉलिंग देयर और आई स्टार्ट स्क्रॉलिंग ओवर देयर, हाँ, इसमें डिफरेंस है? हाँ, एक तो स्टार्टेड बोला होगा, स्टार्टेड स्ट्रॉलिंग ओवर देयर। ओवर का मतलब हम खास एरिया बता देते कि वहीं पर। देयर का मतलब कि पूरा देयर है। ओवर का मतलब लिमिटेड कर देते हैं। मैं कहता हूं कम ओवर हेयर, कम ओवर हेयर मतलब यहां पर आजा। हेयर मतलब तो कुछ भी हो सकता है ना, हेयर, लेकिन ओवर का मतलब इस जगह पर। ओके सर, ये है, लिमिटेड कर देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए गाइस, तो सेकेंड फॉर्म का जो आप इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपने जो भी किया सब सेकेंड फॉर्म में। ओके, अब बीच में आता है हमारा ये स्ट्रक्चर स्टार्टेड। स्टार्टेड में आपने कुछ किया नहीं, आपने करना शुरू कर दिया। जैसे मैं जाने लगा, मैं खाने लगा, मैं सोने लगा, मैं किताब पढ़ने लगा, ये स्टार्टेड है। ओके, तो समझ में आ रहा है रजनी स्टार्टेड वाला फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, तो रजनी आपके लिए सवाल है कि मैं कपड़े धोने लगी, कैसे होगा? I started washing my clothes. ओके, आई स्टार्टेड वॉशिंग क्लोथ्स। ओके, मेरी बेटी मुझसे बात करने लगी। My daughter started talking to me. मैं किचन में गई और चाय बनाने लगी। I went to the kitchen and I started making a tea. मत बोलिए, मेकिंग अ हाँ टी। नहीं बोलना, yes sir, yes. स्टार्टेड मेकिंग टी। I started making tea. मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी इंग्लिश में। Okay. I started talking with my husband in English. और टॉकिंग के साथ टू लगता है, स्टार्टेड टॉकिंग टू माय हस्बैंड। कई लोग टॉक विद बोलते हैं, टॉक टू। Yes sir. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय हस्बैंड इन इंग्लिश। ओके, क्या Talking to. तुम नाचने लगे? सवाल किसी से पूछना है, क्या तुम नाचने लगे? क्या तुम नाचने लगे? Okay. Did you started dancing? जब हम डिड बोलेंगे तो स्टार्टेड नहीं होगा, स्टार्ट होगा। Start. डिड यू स्टार्ट डांसिंग? डिड यू स्टार्ट Dancing. डांसिंग? क्या तुम कपड़े धोने लगे? Did you wash your clothes? डिड यू स्टार्ट वॉशिंग? Oh, did you start washing your clothes? ओके, क्या कल तुम कुछ सोचने लगे? Did you start हम्म thinking
समथिंग yesterday. Yesterday, thinking yesterday. स्टार्ट थिंकिंग समथिंग yesterday. ठीक है, तो पहले इस सारे फॉर्मूले को देखते हैं, फिर एक साथ काम करेंगे। रुक जाइए, सारा फॉर्मूला देख लीजिए। तो ये स्टार्टेड भी समझ में आ गया। अब आता है ये Yes, sir. केप्ट ऑन। केप्ट ऑन आप तब यूज करेंगे, आप कह रहे हैं कि कल मैं पूरे दिन कपड़े ही धोती रही। धोती रही मतलब कंटिन्यू रहा मेरा धोना। तो आप कैसे बोलेंगे कि आई केप्ट ऑन वॉशिंग क्लोथ्स होल डे, पूरे दिन कपड़े धोती रही। मैं खाना पकाती रही, कैसे बोलेंगे? आई I kept kept on making मेकिंग फूड। making food. मेकिंग फूड, Kept on making हाँ। food. मैं दिन भर टीवी देखती रही। I kept on watching TV whole day. ठीक है, अब हम आते हैं वाजवर। यहाँ वाजवर आपको दो तरीके से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ Yes, पर मैंने sir. जो डैश डैश लिखा है, इसका मतलब है कि कोई एक्शन नहीं होगा। यहाँ लिख देता हूं नो एक्शन, नो एक्शन। यानी कि जब एक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि मैं अच्छा था, बुरा था, मैं कमरे में थी, मैं उसके साथ थी, मैं किचन में थी, वो मेरा दोस्त था। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे। जैसे आपको बोलना है कि कल मैं पार्क में थी, तो आप कैसे बोलेंगे? I was in the park yesterday. कल शाम को मैं किचन में थी। Yesterday evening, I was in the kitchen. I Sorry, was yesterday evening I was in the kitchen. आई वॉज इन द किचन। क्या तुम ऑफिस में थे? Did you? नहीं, was you in the office yesterday? वर यू इन द? Sorry, were you? Okay. Were you in the office yesterday? तुम शाम को कहाँ थे? Where was you in the evening? वेयर वर यू? वेयर वर Were यू you? इन Were you? वेयर वर यू इन द इवनिंग? ओके, Evening. मैं बीमार Yes, थी। sir. मैं बीमार थी। I was ill. ओके ओके, ठीक है। दूसरा जो वाजवर है वो आपको पता है कि उसके अंदर एक्शन होता Past है। continuous. हाँ, और उसमें एक कंटिन्यूटी होती है। तो इसमें है कि Yes, अच्छा sir. कल मैं चाय बना रही थी, अब क्या होगा? I was making a tea yesterday. ए नहीं आएगा। अच्छा, I was making tea yesterday. ओके फाइन। अब यहाँ पर बस एक झलक देख लीजिए, हैड है और हैड के बाद यहाँ डैश डैश है। इस डैश डैश का मतलब है कि नो एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं है। इसमें Okay, sir. आपको बताना है कि आपके पास क्या था। अब बोलो कि कल मेरे पास बहुत समय था, तो आई हैड मच टाइम Lot of time. Much time. कल मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी yesterday. Yesterday. तो अब Okay. इस पे बात करते हैं कि कल मेरे पास एक मोबाइल फोन था, कैसे बोलेंगे? Yesterday I had a mobile phone. क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन था? Had you a mobile phone yesterday? इसको थोड़ा लेटेस्ट में समझ लीजिए। रिचा आप भी देख लीजिए कि क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन था? Yes, sir. एक मिनट जरा, लेट मी शेयर द स्क्रीन। क्या तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन था? इसको हम डिड यू करके बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डिड यू हैव Did you have? अ मोबाइल फोन yesterday, इस तरीके से। क्या तुम्हारे पास पैसे थे? डिड यू हैव Did you have a मनी? money? कल मान लो कल पैसे थे क्या? yesterday. ओके, तुम्हारे पास कल कौन सा मोबाइल था? कौन सा मोबाइल था? विच Which मोबाइल? did you have? नहीं, पहले विच मोबाइल। Did you have? हाँ, विच मोबाइल डिड यू Did हैव you have? yesterday? ओके, तुम्हारे पास कितने पैसे थे? कितने पैसे थे? How How much money? मनी Did you have? डिड यू हैव yesterday? इस तरीके से हम बोलेंगे। ठीक है, और ये जो आप हैड देख रहे हैं, ये हैड आपको बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि अकेला यूज नहीं होता है, इसके पीछे एक फीलिंग छुपी होती है। आपने बोला कि मैंने तो खाना पहले ही खा लिया था। पहले खा लिया था मतलब कि कुछ होने से पहले ही खा लिया था। मान लो कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले खा लिया था, मेरी बेटी के स्कूल जाने से पहले खा लिया था। तो आप कैसे बोलेंगे? आई हैड ऑलरेडी ईटन फूड। यहाँ पर आपको हैड का इस्तेमाल करना है। जैसे आपको बोलना है कि क्लास ज्वाइन करने से पहले ही मैंने टेंस को रिवाइज कर लिया था, तो आप रजनी कैसे बोलेंगी कि आई हैड I had revised all tenses before class. हाँ, बिफोर
क्लास भी कहाँ, The बिफोर class. क्लास भी कह सकते हैं, बिफोर आई अटेंडेड द क्लास भी कह सकते हैं, बिफोर आई I attended the class. अटेंडेड द क्लास। ऐसे आपको तो इसकी नौबत बहुत कम आती है, ये जो हैड है बहुत कम आपको इस्तेमाल होगा। जैसे आपको बोलना है, इसको ध्यान दीजिएगा कि कल मैं अपने दोस्त के घर गई, तो आप कैसे बोलेंगे? yesterday Yesterday I went to my friend house. my friend's house, my friend's house, ओके। मैंने दरवाजा खटखटाया, कैसे बोलेंगे? I started knocking Knock the the door. door. सिर्फ खटखटाया, सिर्फ खटखटाया, तो अच्छा। आई I नॉक, Knock the door. आई नॉक द डोर। मेरी फ्रेंड ने दरवाजा खोला, My My friend friend opened the door. Open the door. ओपन द डोर, टोटल पास्ट टेंस है, ओके। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, मान लो फ्रेंड लड़की है तो शी She said told to me. me. शी सेड टू मी, हाँ टोल्ड में भी कह सकते हो, शी सेड टू मी, अंदर आ जा, Come in. Come in. कम इन, ठीक Come है, inside. हाँ इनसाइड भी चलेगा। मैं अंदर गई, अब I came to the. I went to the room. हाँ, या तो बोलो कि आई वेंट इनसाइड, एक तरीका है वेंट इनसाइड, या आप बोलो कि आई वेंट इनटू द रूम, आई वेंट इनटू द रूम। Okay. I went into the room. मैं सोफे I पर went into the house. हाँ, इनटू Can द I say? हाउस, इनटू हर रूम बोल सकते हैं। मैं सोफे पर बैठ गई, I sat on the sofa. सैट, सेकेंड sat on the फॉर्म, sofa. सेकेंड फॉर्म, आई Yes. सैट, Yes, I said sat. हाँ, ऑन द काउच, काउच मतलब सोफा, आई सैट ऑन द काउच, ओके। मेरी दोस्त की माँ वहां नहीं थी, कैसे बोलेंगे? My friend's mother did not hear. गलत, वॉज नॉट देयर। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। डिड नॉट क्यों नहीं आएगा? डिड नॉट में तो एक्शन आता है ना, डिड नॉट गो, डिड नॉट ड्रिंक। वाज ये जो है इसमें Yes, कोई yes. एक्शन नहीं है, नो एक्शन, Action नहीं. इसमें एक्शन नहीं है। Oh. ये स्टेट ऑफ बीइंग है कि वो कोई था, कोई नहीं था, कोई अच्छा था, कोई बुरा था, ये वाज है। तो माई फ्रेंड्स मदर वॉज नॉट देयर। अब यहाँ पर रजनी और रिचा ध्यान दीजिएगा, माँ नहीं थी, मुझे बोलना है कि एक्चुअली उसकी माँ मंदिर गई हुई थी। अब क्या बोले? मशाल ध्यान देना, एक्चुअली उसकी माँ मंदिर गई हुई थी, बोलिए। Actually, Mother. her mother हम्म, went to the. Yeah, फैसला कीजिए, Had, फैसला हाँ. कीजिए, फैसला कीजिए। had. Her mother had gone to the temple. टू द टेम्पल। रिचा समझ में आ रहा है? Yes. यहाँ पर हैड इसलिए लगा क्योंकि जब आप उसके घर गए तो आपके सामने उसकी माँ मंदिर नहीं गई, आपके जाने से पहले ही वो मंदिर जा चुकी थी। यहाँ पर सिचुएशन देखिए, सिचुएशन That's देखिए, why we used had gone. इसीलिए हमें हैड लगाया। हम वेंट कब लगाते? मैं अगर ऐसे बोलता कि हर मदर वेंट टू द टेम्पल, ये मैं तब बोलता जब उसकी माँ मेरे आंखों के सामने जाती, मैं उसे जाते हुए देखता। Okay. लेकिन जब मैं गया तो सिर्फ मेरी दोस्त थी, मेरी माँ नहीं, उसकी माँ नहीं थी। यानी कि उसकी माँ कहीं तो गई हुई थी ना, तो उसकी माँ जहां भी गई हुई थी, क्या वो मेरे आंखों के सामने गई? नहीं गई। तो ये होता है पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल। आप कह सकते हो जैसे मैंने आपको बुलाया कि आप मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आइए, तो आप कहानी सुना रही, आप कह रही अपने हस्बैंड को कि yesterday sir gave me a call and he asked me to come to his offline class. He said that come around 9 o'clock. I went there at 9:30. I saw that sir was not there. Then I came to know that he had gone somewhere. He had gone somewhere. वो कहीं गए हुए थे। क्यों had gone somewhere? Went क्यों नहीं? क्योंकि जब आप गए तो बंदा वहां पर नहीं था, तो आपके जाने से पहले वो जा चुका था, इसीलिए हमें हैड लगाते हैं। चलिए तो आई थिंक इतना काफी है, अब हम स्टोरी पर काम करते हैं। तो अंकित, आर यू देयर? अंकित हैज गॉन, आई थिंक। अंकित, आर यू देयर? नो, Yes. He's coming soon. He, okay, Ankit is not here because it is the basic class, that's why. Okay, Mashal, are you there? Mashal? ठीक है, मैं कुछ एक स्टोरी बोल रहा हूँ मशाल, आप बस ट्रांसलेट करना, बाकी लोग देखेंगे कि वो करते तो कैसा करते। ठीक है, रेडी मशाल? okay. सर एक बार फिर से बोलना, मोबाइल रिंग आ गई थी इसमें। आई एम जस्ट
I'm just going to tell you a story in Hindi. You just have to convert into English as fast as you can. Okay? ओके ओके अब रजनी और ऋचा देखेंगे कि क्या वो भी सही सोच रहे थे या गलत सोच रहे थे। ओके कल मैं अपने कमरे में था, आई वाज इन माय रूम यस्टरडे, अचानक मेरा फोन बजने लगा, ऑल ऑफ सडन माय फोन स्टार्टेड रिंगिंग रिंगिंग रिंगिंग। ओके रिंगिंग मैंने फोन पिक किया। आई पिक्ड अप माय फोन, ओके यह मेरे दोस्त का फोन था। इट वाज माय फ्रेंड्स कॉल, मैं उससे बात करने लगा। आई स्टार्टेड टॉकिंग विद माय फ्रेंड, ओके मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि यार मेरे घर आ जा। माय फ्रेंड सेड टू मी प्लीज कम टू माय होम, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा था। आई वाज गोइंग टू माय फ्रेंड्स हाउस, उस वक्त मेरे पास कुछ पैसे थे। ऑन दैट टाइम आई हैड सम मनी, ओके मेरा वॉलेट मेरी जेब में था। माय वॉलेट ये में था, माय वॉलेट इन माय पास माय वाज माय पॉकेट, वॉज इन माई पॉकेट। ओके वाज इन माय पॉकेट, मैं पैदल जा रहा था। I was going walking by walking. गोइंग ऑन फुट ऑन फुट ऑन फुट। अचानक एक बंदे ने मुझे हिट किया। All of a sudden, a person hitted me. हिट का हिट रहता है सेकेंड फॉर्म, हिट मी। ओके उसके बाद उसने सॉरी बोला। After that, he said to sorry to me. ही सेड सॉरी टू मी, ही सेड He said- सॉरी टू मी। ओके मैंने कहा कोई बात नहीं। I replied, don't, no problem. रिप्लाइड की जगह आई सेड ज्यादा अच्छा, आई सेड नो प्रॉब्लम इट्स ओके। मैं जाने लगा। I started walking from there. या स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम देयर। अचानक मैंने अपने पर्स को चेक किया। All of a sudden, I checked my purse. मेरा पर्स मिसिंग था। My purse was missing. मैंने फिगर आउट किया कि उसी बंदे ने चुराया होगा। I started figure out that my purse had been stolen by that person. अब यह है कि मैं फिगर आउट किया तो आई फिगर्ड आउट। स्टार्टेड बोलेंगे तो फिगरिंग आउट बोलना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि आई Okay. फिगर्ड आउट कि उसने चुराया होगा। ये अंदाजा है, ये टेंस नहीं है। Okay, चुराया होगा, it would होगा, he would have stolen my purse. हाँ जी, या ही मे हैव, ही माइट हैव, ही मस्ट हैव, पक्का उसी ने चुराया होगा। ही मस्ट हैव स्टोलन माई वॉलेट। मैं उसके पीछे भागने लगा। I started running back to रनिंग back आफ्टर to- हिम, रनिंग आफ्टर हिम। I started running after him. वो भी तेज तेज भागने लगा। He also started running fast. मैंने शोर मचाया, चोर चोर। I started screaming, thief, thief. कुछ लोग वहां इकट्ठे हो गए। Some of people were gathered there, वर नहीं आएगा, गैदर्ड ओवर देयर। और कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। and some of them catched him, कॉट हिम, caught him. उसको बहुत पीटा गया। अब ये पैसिव है, ये पैसिव है। Okay, उसको बहुत he was brutally beaten. मैंने अपना पर्स उससे छीन लिया। I took my purse from him, मैंने उसको एक थप्पड़ मारा slapped him, और फिर मैं अपने दोस्त के घर जाने लगा। and I started back to my friend's house. स्टार्टेड गोइंग बैक टू माई फ्रेंड्स होम। Started going back to my friend's house. जब मैं अपने दोस्त के घर पहुंचा, When I reached to my friend's house, रीच में टू नहीं आता, व्हेन आई रीच्ड माई फ्रेंड्स हाउस, मेरा दोस्त वहां नहीं था। my friend was not there. एक्चुअली वो पार्क गया हुआ था। Actually, he had gone to park. एकदम करेक्ट, यहाँ हैड आएगा। तो एकदम आप ओके हो मशाल। अब शायद रजनी और रिचा ने सुना। यस सर। Yes, sir. तो अगर ये मैं आपसे पूछ रहा होता तो आपको लगता है कि आपने इतना बोला होता या कहीं फंस जाती आप? सर कहीं फंस जाती है। एक लाइन पे, एक दो लाइन पे। या तो वो आई अंदाजे। स्टक इन 1 or 2 लाइन सर। ओके ठीक है, ठीक है। अब जाकर के हम एक स्टोरी करेंगे ताकि आपको बिल्कुल आज चेक कर लूँ मैं। तो स्टोरी आपके सामने ये है। कहानी दिख रही है या मैं शेयर करता हूँ? रुकिए, मैं शायद शेयर मैंने नहीं किया ना, एक मिनट जरा स्क्रीन शेयर कर दूँ मैं। या आर एबल टू सी दिस
इमेज? Yes, sir. मैं हिंदी में बोलता हूं, आप इसे ट्राई कीजिएगा, ओके? या अमन एक बार बोल के सुनाएगा, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। ये सोनू नाम का लड़का है, ये अपने घर पर था, अचानक इसका फ़ोन बजा, इसने फ़ोन पे बातें की अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों ने कहा कि पार्क आ जा, तो ये पार्क चला गया। फिर दोस्त लोग बातें कर रहे थे कि यार भूत के बारे में बातें कर रहे थे कि भाई भूत से बहुत डर लगता है, भूत तो होते हैं। इसने कहा कि भूत नहीं होते हैं। तो दोस्तों ने कहा कि अच्छा, तो तू हमारे साथ एक जगह चल और भूत को चैलेंज कर। तो ये तीनों के तीनों एक बहुत ही स्पूकी जगह चले गए, स्पूकी मतलब डरावनी जगह चले गए। वहाँ पर इन दोनों दोस्तों ने कहा कि जा, गो एंड इनवाइट द गोस्ट, जा भूत को इनवाइट कर। सोनू ने कहा ठीक है मैं करूँगा। सोनू गया उस पेड़ के पास, उसने बोला हे घोस्ट, आई इनवाइट यू टू माई होम, मैं तुझे अपने घर बुलाता हूँ। उसके बाद रात को जब सोनू घर पर था, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जब सोनू ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर एक लड़की थी। लड़की ने बोला कि मेरी कार खराब हो गई है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सोनू बोला अंदर आ जाइए। दोनों के बीच बातें होने लगी। अचानक लाइट चली गई। जैसे लाइट गई, वो लड़की भूत में तब्दील हो गई। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, आगे क्या हुआ पता नहीं। अगले दिन क्या होता है कि दोनों दोस्तों ने सोचा कि चलो यार सोनू के घर चलते हैं। दोनों जब सोनू के घर गए, दरवाज़ा नॉक किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दोनों डर गए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब वो अंदर आए तो सोनू की वहाँ पर बॉडी पड़ी हुई थी। सोनू वॉज डेड दैट टाइम। इसको आप अंग्रेजी में सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे, कौन सा टेंस आएगा, कब हैड आएगा, कब वॉज आएगा, कब सेकंड आएगा, ये चेक करना है। Okay, sir. तो पहले अमन आप बेटा एक स्टोरी सुना Yes, दो। sir. There was a boy Hmm. named Sonu. हम्म One day he had a call. It was his friend's call. हम्म They said hello. Sonu said hello. A talk was about to start. A talk started between them about ghost. हम्म His friend said ghost exists, हम्म but he denied that ghost exists. He said there are no ghosts. हम्म Then they said, let's come with us to a spooky place. हम्म So they went there and they said, go and invite the ghost. Then Sonu said, okay, I'll go. Then Sonu went there and said, hey ghost, I invite you to my home. After that, Sonu returned to his home. At night, a girl came and knocked Sonu's house door. Then Sonu opened the door and asked what happened. Then the lady said, my car has been broken. has broken down. Has broken down. Then Sonu said, please come in. You can stay. You can rest here. Then a conversation started between both of them. And after some time, light went off. Sonu, when light comes back, there was a ghost in front of Sonu. He got scared. After he got scared and scared. And on the next day, when Sonu's friend came to his house, they thought, let's go to Sonu's house and see what happened. Then they came Sonu's house and knocked the door, but there was no response. So they broke the door and they saw that Sonu is dead. Sonu was dead. ओके, इट वाज गुड, नो प्रॉब्लम। अब अमन अपना स्पीड बढ़ाना और सजाना आपका दो काम है, ठीक है? आप Yes, sir. डेकोरेट करना सीख जाओ, इसी स्टोरी को घर पे करना। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामेटिकली यू आर एब्सोल्युटली ओके, नो इशू। Okay, sir. ठीक है, अब
रजनी, आप ट्राई कीजिए। Yes, sir. गो अहेड। Okay. Um, Hello, everyone. Today I'm telling a story of my friend who did not believe in ghosts. My friend name is Sonu, and one day he went to the park and he met with his friends, and they started talking about a ghost. And then one friend said, "Ghost is exist, Ghost exists. but so ghost exist." But Sonu said, "No, ghost did not exist. Does not. It's just a imagine. It does not exist. It's just a imagination. That's all." But both of friends said, "No, ghost is in this world, present in this world." Then they decided to prove the Sonu, and they went to the smoky place. And then one friend said to the Sonu, "Sonu, if you want to prove, then you look the tree. The ghost live in the tree. If you want to prove, so invite the ghost in your home." Then Sonu said, "Okay, fine, I will." Then he went to the near the tree and said, "Hey ghost, I invited you to come my home." And after that, they laughed and went to the home, came back to the home. At same night, when Sonu was sleeping, he heard someone knock the door. He wake up and he opened the door, and he saw a girl was standing over there. He said, "What happened?" The lady said, "My car was broken, so please help me." Then Sonu said, "Okay, fine, come in." And after they started talking to each other, suddenly light went off, and lady turned to the ghost. And Sonu was afraid, and he died on the spot. And next day, his friend came to the Sonu house and he knocked to the room, but nobody opened the room. Then he broke the room, and they fabulous state. He saw Sonu was died. Thank you. आपने नॉक द रूम कह दिया, ब्रोक द रूम, डोर था ना, नॉक द Broke डोर। the room. Okay. ओके, Okay. बाद में क्या बोला था? फ्लेवर क्या? लास्ट सर fabulous text. वो एक वर्ड था ना सर जो आपने बोला था, fabulous gasted, sorry. अच्छा, Fabulous gasted. फ्लेवर गास्टेड, फ्लेवर गास्टेड Flabbergasted. मतलब कि वो सरप्राइज हो गया। सरप्राइज हो गया। Flabbergasted. आपने एक जगह ही वेकअप कह दिया था गलती से, वो वोकअप होता He है। woke up था सर। हाँ। फिर he आपने woke कहा up. माई कार वॉज ब्रोकन, लड़की गई, उसने बोला कि मेरी गाड़ी खराब है। तो ऐसा हो सकता है कि माई कार ब्रोक डाउन या माई कार हैज ब्रोकन डाउन, ये हो सकता है। ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना होता है। फिर आपने कहा कि वो लड़की भूत बन गई, तो टर्न टू द गोस्ट कहा। Turn to the टर्न के बाद इनटू आता है, टर्न इनटू द गोस्ट। किसी चीज में कोई तब्दील होता है तो इनटू होता है। बाकी कुछ कोई मतलब प्रॉब्लम आज नहीं थी, आज प्रॉब्लम नहीं थी, खाली एक वेकअप वोकअप का था और कुछ नहीं। तो अब जैसे अब तक मैंने जितनी स्टोरीज दी होंगी उस पर भी आप अपने हिसाब से घर पर कुछ ना कुछ जरूर बनाएं। यस सर। और ऐसा कर दीजिए कि आपकी स्पीड बेशक हो ना हो, ग्रामर एरर खत्म हो जाए, तो स्पीड तो निकाल ही लेंगे, एरर खत्म हो जाए एक बार। तो आज तो अभी तो एरर मुझे दिखाई नहीं दिया, बस एक मिस्टेक हो गया था आपसे, तो आई होप कि हो जाए सही। क्योंकि फिर इस बैच में देखिए, अब बेसिक में अगर इसमें चलाता हूँ तो फिर जैसे अंकित चले गए, और बहुत लोगों को लगता है बेसिक यार ऊब जाएंगे, पक जाएंगे ना, ऐसा लगने लगता है। नहीं सर, I'm here. अच्छा, और ओके अंकित, आई थॉट यू वेंट। एंड अगर मैं आपको किसी और बैच में डालूँ तो 10-15 लोग, इतना क्राउड होगा कि आपका नंबर ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ओके। तो मैं चाहता हूँ इस बैच में आप फटाफट निपट जाए, कैसे भी हो जाए आपका। ओके? यस सर। सर ये ओके सर। बाकी आप मुझे सर आई रियली वांट टू हम्म, स्टे दिस ग्रुप। हाँ, और आप मुझे ऑडियो अपना ना ये स्टोरी बोल बोल के, कुछ भी स्टोरी बोलिए। एक तो रियल वाला तो रोज आप रिकॉर्ड कीजिए,
और आप अगर मुझे Okay, टाइम sir. नहीं मिलता है तो आप ग्रुप में भेजिए, अंकित किसी को भी टाइम मिलता है, अगर फ्री है तो चेक कर लेगा, तो क्या दिक्कत है, जिसको आता है वो चेक कर ले, तो ये हो सकता है। Okay. आप ग्रुप में भी भेज सकती हैं कि आपने दिन भर जो Ankit, किया। you did. Uh-huh. Sir, I sent to Ankit. अब यहाँ पर आपको विल लगाना Send to the चाहिए, Ankit. आपको यहाँ पर Please, विल please, लगाना please. I चाहिए। will send. I will send. Yeah, I will please. send to the Ankit, sir. हाँ, Yes. द अंकित नहीं, सेंड टू अंकित। ये माइनर Send to मिस्टेक, Ankit, sir. द लग जाता है, माइनर है। ओके चलिए रिचा, Sir, रिचा का देखते हैं। Yes, sir. रिचा को बोलने दो, मशाल तो बोल ही लेगा, रिचा को बोलने दो। रिचा Okay, sir. ट्राई कीजिए। There is a character. His name is Sonu. Sonu is a fearless boy. One day, he went a park and saw his two friends. They both talking about a tree standing there. That place is so spooky. Sonu came near his friends and say hello. There are a ghost on this tree, his friends told him. So Sonu did not believe in paranormal activities and superstition. So that's why he told his friends ghost not exist, डज नॉट, has not. Ghost not exist. डज नॉट एग्जिस्ट, After, डज नॉट एग्जिस्ट। it does not exist. After that, his friends told him, "Why would you not try?" So that's why Sonu said, "Okay, I will try and say, hey ghost, I invite you to in my home." At the same night, the suddenly Sonu is alone in his home. Sudden the door knocked and bell rings. Sonu opened the door and he saw in front of him a lady. Lady said, "Help me! My car has been broken and I need help." Sonu said, "Come inside." Uh, After that, they conversing each other. दे Sudden दे Sonu स्टार्टेड कॉन्वर्सेशन they started conversation each other. विद एच After that, sudden light went off सडनली and बोला कि Sonu एक saw. सडन, एक या तो ऑल ऑफ अ सडन होता है या सडनली होता है, Okay. तो आप सडनली के Suddenly light went off and Sonu saw the lady has turned into a ghost. Sonu had a heart attack and he died. लवली, हैड अ हार्ट अटैक, वेरी गुड। ओके Next day, their friend decided to go their home. They reached their home and knocked the door, but inside the home there was no response. After that, after a long time, they decided to break the door and came inside. When they are came inside, they saw Sonu lie down on the roof on the floor, and he died. That's it. ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स कि कहाँ प्रॉब्लम आई है। Okay. सी, एम आई विजिबल, एम आई विजिबल, या यू सेड कि ही दे बोथ टॉकिंग अबाउट, तो दे बोथ वर टॉकिंग अबाउट, माइनर मिस्टेक्स आई है। से हेलो तो से की जगह सेड होता, ही सेड हेलो। डिसाइडेड टू गो, नहीं ये तो ठीक था। व्हेन दे आर कम कुछ ऐसा बोला था, आर बोल दिया था, व्हेन दे आर कम कुछ ऐसा कह दिया था। और एक बोल दिया था डिसाइडेड टू गो टू देयर हाउस, जैसे कि दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम सोनू के घर जाएंगे, तो देयर हाउस की जगह हिज हाउस होता, कि दे डिसाइडेड टू गो टू हिज हाउस होता। तो ये माइनर मिस्टेक था, मतलब कंट्रोल था आज। तो इस तरीके से आपकी और रजनी की स्टोरी और सवाल जवाब, आई थिंक फिर एक हफ्ता ट्राई करते हैं, आई होप सो। मंडे टू फ्राइडे तक में, मतलब हाफ एन आवर आपको मिलेगा आप दोनों के लिए। हाफ एन आवर हमें स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करानी है ना, जैसे अंकित हैं और भी लोग हैं, मशाल हैं, तो हाफ एन आवर में आप ये प्रैक्टिस कीजिए।
घर पर आप स्टोरीज बनाइए रियल वाली, आप बैठिए कि आपने पूरे दिन जो किया वो एकदम रियल होगा, मज़ा आ जाएगा। उसको रिकॉर्ड करके आप भेजिए। मैं आजकल इतना बिजी हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है चेक करना, तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, या रजनी आप अंकित को भेज सकते हैं अगर वो फ्री हो, आजकल लॉकडाउन में है वो, तो फ्री हो तो चेक कर सकते हैं। सर माय कार Ankit, ब्रोक are you डाउन free जो nowadays? सेंटेंस था, I'm not, but you can send me your audio, so I will, whenever I have time, I will check it out and let you know. Okay, सर thank you. Do send me. हाँ माय अमन, कार ब्रोक डाउन वाला सेंटेंस जो था उसमें सर वो पैसिव था या नॉर्मल सेंटेंस ये था? नॉर्मल था, मेरी गाड़ी खराब हो गई, माई कार ब्रोक डाउन, सिंपल था। और वो हेज लगाने के बाद सर? तो हैज़ के बाद वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, माई कार हैज़ ब्रोकन डाउन, यानी कि मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, ये दिखाना है। तो दोनों ही तो सर यहाँ पर माई कार जैसे एक ऑब्जेक्ट को अपन वो दे रहे हैं ना सर, प्राथमिकता, तो ये पैसिव क्यों नहीं हुआ सर? माई कार हैज बीन ब्रोकन डाउन। एक्चुअली मेरी कुर्सी टूट गई, अगर मुझे ऐसा बोलना है हाँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि माई चेयर ब्रोक, मैं ऐसा कह सकता हूँ। जैसे कि जो ब्रेक है, एक जो वर्ब होता है, एक डूइंग होता है, एक हैपनिंग होता है। डूइंग का मतलब कि सब्जेक्ट कुछ करे, और हैपनिंग का मतलब कि सब्जेक्ट के साथ कुछ हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि माई नेबर डाइड, मेरा पड़ोसी मर गया, तो पड़ोसी ने कुछ किया नहीं, पड़ोसी के साथ कुछ हुआ, वो मर गया। हम ऐसे बोल सकते हैं माय नेबर गॉट डाइड। जी नहीं, गॉड की जरूरत ही नहीं है, तो महा खराब हो जाएगा। गॉट डेड हो सकता है, गॉट डेड हो सकता है, लेकिन डाइड नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, जैसे ब्रेक है, रट लेना उसे, ब्रेक। वहाँ हिंदी क्या हुआ कि मरा हुआ पाया गया। हाँ, गॉट डेड का मतलब क्यों डेड हो गया, डेड का मतलब मरा हुआ होता है ना। कैसे कहते हैं, माई फोन इज डेड, सुना होगा, माई फोन मरा इज हुआ। डेड, तो डेड का मतलब कि नॉट वर्किंग, वो तो वहां पर यूज कर सकते हैं। Yes, yes. लेकिन याद रखना कि ब्रेक ऐसा शब्द है कि अगर कोई भी चीज़ अपने आप टूट गई, उसने कुछ किया नहीं। अगर मैं बोलूँ ये मग, दिस मग ब्रोक, तो मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद टूट गया, तो हम आराम से बोल सकते, कोई पैसिव नहीं है, फुल अलाउड हैपनिंग है ये। तो उसी तरीके से कार ब्रोक डाउन, गाड़ी खुद खराब हो गई, आराम से हो सकता है। सर ये स्टोरी जब मैं अकेले में बोलता हूँ तो मतलब थोड़ा अच्छी बुलाती है, थोड़ा अपने अलग चीजें भी ऐड हो जाती है, और जब यहाँ पर बोलता हूँ तो सिर्फ वो जो लिखा रहता है ना, सिर्फ वही बोल पाता हूँ। क्योंकि ऑन द स्पॉट अभी सजाना नहीं आया है। जब मैं आपको 2-3 घंटे पहले स्टोरी भेजता हूँ, आप कुछ एडवांस स्ट्रक्चर उठा लिया करो और उसको देखकर यहाँ बोलो, ऑन द स्पॉट भी बोलो तो देख लो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मैंने कल भी एक डाला था डेकोरेट करके रात को, एक स्टोरी डाली थी मैंने। खैर अंकित, अभी एक बैच है 11 बजे, उसमें एक डिबेट है, आप फ्री है, डिबेट करेंगे आप? Yes sir, sure. डिबेट है सोशल मीडिया इज गुड और बैड। सर शायद मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, बट ठीक है, हाफ एन आवर कर लीजिए। हाँ सर, जितने टाइम दे, क्योंकि मुझे सर बिल में ऑनलाइन ढूंढना होगा। अच्छा, तब तक मैं कर लूंगा। ठीक है। कोई डिबेट आप में से करेगा? एक नया अभी जो बैच है उसमें डिबेट होने वाला है, कोई चाहेगा? यस सर। सर आई आस्क वन थिंग, हाँ। तो जो आप स्टोरी भेजते हैं सर, वो पहले हम लिख लें? नहीं फिर लिखिए, उसको देख के लिखिए मत, लिखना नहीं है, वो तो फिर आदत खराब हो जाएगी। स्टोरी को एक तो मैं बताता नहीं, स्टोरी खुद फिगर आउट आप लोग कर लेते तो कमाल है। तो उसको कुछ एडवांस स्ट्रक्चर रख लीजिए अपने पास कि इररिस्पेक्टिव ऑफ, गेट द विंड ऑफ, बहुत सारे हैं, और देखिए कि क्या सूट करता है, कुछ तो सूट करेगा, फिर आपको आदत हो जाएगी एडवांस स्ट्रक्चर्स की। ओके ठीक है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेक्स्ट बैच में जा रहा हूँ, तो अगर कोई डिबेट ज्वाइन करना चाहता है तो वो अभी डिस्कनेक्ट ना हो, बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन, ओके, रजनी मैम, विद यू कंटिन्यू। बाय एवरीवन। अरे